محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشنی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ خرچ کرو گے اس کا ثواب ضرور دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی زوجہ کے منہ میں رکھو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال بیمار ہوا، یہاں تک کہ موت کے قریب ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس بہت سا مال ہے اور میرا وارث ایک بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، صدقہ مت کرو۔ میں نے عرض کیا، پھر آدھا صدقہ کر دوں؟ فرمایا، آدھا بھی مت کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا 1/3 صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، 1/3 کر سکتے ہو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ تم اپنے وارثوں کو مالدار اور لوگوں سے مستغنا چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے وارثوں کو محتاج چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ خانگی کالجز کے بالمقابل تلنگانہ اقلیتی اسکول و کالجز میں تعلیم، سی ایم KCR کا اہم کارنامہ۔ حیدرآباد بک فیئر میں اقلیتی اسکول کے طلباء کی کتاب کی شرکت پر ریاستی وزیر برملا پرشانت ریڈی نے دی مبارکباد۔ نظام آباد میں مجرمین کی ہمت میں ہوا اضافہ، دن کے اوقات میں پالی ٹیکنک گراؤنڈ کے پاس سے ایک شخص کو کیا گیا اغوا، محکمہ پولیس کی جانب سے تحقیقات کا آغاز۔ پورے ملک میں سب سے کم وقت میں زیادہ ترقی کرنے والی ریاست تلنگانہ، وانی منڈل میں ترقیاتی کاموں کا دورہ کرتے ہوئے ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچران سرینواس ریڈی کا اظہار۔ متحدہ ضلع میں 138 کانگریس پارٹی یوم تاسیس کا شاندار پیمانے پر انعقاد، اہم قائدین نے کی شرکت و کانگریس کی کارکردگی پر ڈالی روشنی۔ فلاحی اسکیمات کو عوام کے درمیان لے جانا ہر فرد کی ذمہ داری، ZP اجلاس سے TSRTC چیئرمین باجوڈی گوردھن، ZP چیئرمین ڈیوڈ کلراؤ، ضلع کلکٹر کا خطاب۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ 138 کانگریس پارٹی یوم تاسیس کا شاندار پیمانے پر ضلع پارٹی دفتر پر انعقاد۔ ملک کی آزادی سے لے کر آج تک بھی ملک کی ترقی میں کانگریس کا اہم رول، قائدین کا اظہار۔ آج کانگریس دفتر پر کانگریس پارٹی کی 138ویں یوم تاسیس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر پارٹی کے سینئر قائدین و TPCC نائب صدر طاہر بن حمدان، DCC مانالہ موہن ریڈی و دیگر نے شرکت کرتے ہوئے پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کانگریس ہی وہی جماعت ہے جس نے ملک کی آزادی میں ایک اہم رول ادا کیا ہے، اور ملک کی ترقی کے لیے جو کام کانگریس نے انجام دیے وہ آج تک بھی کسی اور جماعت نے بھی انجام نہیں دیے۔ کانگریس دور حکومت میں ہی کئی اہم اقدام لیے گئے جس کے سبب بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کا نام روشن ہے۔ اس تقریب میں کانگریس پرچار کمیٹی صدر جاوید اکرم، ضلع اقلیتی سیل صدر عرفان علی و دیگر موجود تھے۔ 38వ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిమానులకు, కార్యకర్తలకు, నాయకులందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భావం నుండి స్వతంత్రానికి ముందు స్వతంత్ర పోరాటంలో, స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ దేశ అభివృద్ధిలో క్రియాశీలక పాత్ర। इंसाफ के लिए निर्मल में सहाफी धरना देने पर मजबूर, एक्रीडिएशन कार्ड की अदम इजराई पर दर्ज करवाया एहतजाज।
نرمل میں صحافیوں کا احتجاج ایکریڈیشن کارڈز کی عدم اجرائی پر اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے آج نرمل کلکٹریٹ کے روبرو تلگو اور اردو میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافیوں نے TUWJ-IJU کے بینر تلے پریزیڈنٹ کندوری روی کی قیادت میں احتجاجی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا۔ واضح ہے کہ ریاستی وزیر اور مقامی ضلع کلکٹر سے بارہا نمائندگی کے باوجود بھی صحافیوں کا مسئلہ حل نہیں ہو پایا، جس کے بعد احتجاج کے لیے صحافیوں کو سڑک پر آنا پڑا۔ DPRO کی منمانی قابل تشویش قرار دی اور صحافیوں کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا۔ صحافیوں کے مسائل کو لے کر کیا جا رہا ہے اور یہ دھرنا کنڈوری رویندر کے قیادت میں منظم کیا گیا ہے۔ میں ضلع صدر BJP راہل اور دیگر آنے والے تمام ادارے کرنے والے تمام مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج جرنلسٹوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، حکومت ان کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ انہیں ان کا جو ڈیمانڈ ہے ڈبل بیڈ روم اپنے پیپروں سے الیکٹرانک میڈیا کی جو تلنگانہ کی میسج دلی تک پہنچایا اور وہ سونیا گاندھی دیکھ کر تلنگانہ کو آزاد کیا تلنگانہ دیا۔ آج مگر انہی رپورٹروں کو حکومت ناانصافی کر رہی ہے اور ہم ان رپورٹروں کے ساتھ ختم نبوت نظام آباد کی جانب سے منعقدہ ایک روزہ تفہیم ختم نبوت ورکشاپ کے پوسٹرز کی بالکنڈہ میں مذہبی و سیاسی سماجی قائدین کے ہاتھوں رسم جائی و عوام سے شرکت کی اپیل۔ ایک روزہ تفہیم ختم نبوت ورکشاپ ضلع نظام آباد تاریخ 31 دسمبر 2022 بروز ہفتے بعد نماز عصر تائیکم جنوری 2023 بروز اتوار بعد نماز مغرب کے پوسٹر کی رسم جائی جامع مسجد بالکنڈے میں عمل میں آئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مفتی محمد اعجاز علی نے کہا کہ آج سے اس دور میں ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم ختم نبوت کی تنظیم کے ساتھ جڑ کر ہر روز اٹھ رہے فتنوں کو ختم کریں۔ انہوں نے بالکنڈہ کے تمام تعلیم یافتہ نوجوانوں مسلمانوں سے خواہش کی کہ وہ اس ورکشاپ میں شرکت کرتے ہوئے کامیاب بنائے۔ یہ پروگرام مسجد عابدہ احاطہ ادارہ انوار المدارس بابن صاحب پہاڑی نظام آباد میں زیر صدارت مولانا محمد عبدالقوی صاحب منعقد ہوگا، جس سے مقررین کرام حضرت مولانا مفتی سعید اکبر نقشبندی نظام آباد، حضرت مولانا محمد عبدالقوی ناظم ادارہ اشرف علوم حیدرآباد، حضرت مولانا محمد انصار اللہ قاسمی حیدرآباد، حضرت مولانا مفتی عبدالمنعم فاروقی حیدرآباد، حضرت مفتی عبدالمعز شامزی میڈپلی، مفتی عبدالقوی عمر حسامی حیدرآباد، حضرت مولانا محمد وجیہ الدین قاسمی حیدرآباد، حضرت مولانا سید اکرم الدین آرمور، حضرت مولانا محمد ارشد علی قاسمی کے خطابات ہوں گے۔ اس موقع پر علماء کرام عوام کی کثیر تعداد موجود اور ہم سب اپنے ہاتھوں میں بینر تلے رسم اجرائی اس کے عمل میں آئی اور ہم سب مل کر یہاں کی سیاسی لیڈرز مل کر اور جماعت کے ساتھی مل کر اور دیگر عام ناس مل کر ہم یہاں پر اس کی رسم اجرا کیے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے وہاں پر پہنچنا، اور اس کے تعلق سے جمعہ میں بھی ہم اعلان کیے ہیں اور آئندہ جمعہ میں بھی اعلان کریں گے۔ الحمدللہ اس ورکشاپ کے تحت میں جو خدمت ہم کو دی گئی ہم اس کو بخوبی نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے۔ اسی درمیان میں یہ رسم اجرا عمل میں آیا اس جلسے کا، اس ورکشاپ کا، لہذا جہاں تک بھی یہ ویڈیو اور یہ کلپ پہنچے تو لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے نوجوانوں کو، اسٹوڈنٹ کو اور جتنے بھی کلاسک اسٹیٹ اوپن ٹائیکونڈو چیمپئن شپ میں کھلاڑیوں کا شاندار مظاہرہ، نظام آباد کو 30 میڈلز کا حصول۔ ٹائیکونڈو مارشل آرٹس اکیڈمی، سلام ٹائیکونڈو اکیڈمی اور انڈورینس ٹائیکونڈو اکیڈمی کے ٹائیکونڈو کھلاڑیوں نے 25 دسمبر کو پلاوی ماڈل اسکول الول حیدرآباد میں منعقد ہوئی CK کلاسک اسٹیٹ اوپن ٹائیکونڈو چیمپئن شپ میں حصہ لیا اور آپ نے شاندار مظاہرے سے شائقین کو محفوظ کرتے ہوئے 9 گولڈ میڈلز، 13 سلور میڈلز اور 8 کانسے کے میڈلز حاصل کیے۔ اس موقع پر انٹرنیشنل ٹائیکونڈو کوچ ماسٹر عبداللہ فاروق، غیاث علی، سہیل، عتیقہ بیگم نے بطور ریفری خدمات انجام دی۔ اس موقع پر شریمتی سوپنا ریڈی، چیئرپرسن CK ٹائیکونڈو کلب، مسٹر سریش، جوائنٹ سیکرٹری مسٹر ومشی کرشنا، آرگنائزنگ سیکرٹری نے کامیاب کھلاڑیوں کو میڈل سے نوازا، جس میں 9 گولڈ، 13 چاندی، 8 کانسے میڈلز شامل ہیں۔
रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब बालकोंडा मंडल के मुकाम पर कई तरक्याती कामों को तेजी के साथ रूबे अमल में लाने का बालकोंडा टीआरएस कायदीन ने किया इजहार। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब कई तरक्याती कामों के लिए फेरफोर फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का एमपीपी लावण्य लिंगागौड, एमपीडीओ संतोष कुमार व मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी ने इजहार करते हुए आज मंडल के मुकाम पर वाक़े यादव संगम भवन के तामीरी काम जिला परिषद स्कूल के मैदान में ड्रेसिंग रूम से मुताल्लिक़ा राजी पर भूमि पूजा अंजाम दी गई। इस मौके पर इनके साथ वाइस एमपीपी श्रीकांत यादव, सरपंच बी सुनीता, एमपीटीसी सवामी नुमाइंदे व दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा मंडल कोऑप्शन मेंबर सईद फयाज अली, नायब सरपंच शेख वाहब व दीगर मौजूद थे। जिले चंदरपुर के ऊर्जा ग्राम WCL वर्कशॉप में शेरनी दाखिल होने से दहशत का माहौल। IFO इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर व फॉरेस्ट टीम ने 2 दिन की अनथक मेहनत के बाद शेरनी को किया कैद। बताया जाता है कि महाराष्ट्र जिले चंदरपुर के ऊर्जा ग्राम WCL वर्कशॉप में एक शेरनी दाखिल हो गई थी, जिसके सबब ऊर्जा ग्राम के नौही इलाके में खौफ का माहौल देखा जा रहा था। इसी के पेश नजर मरकजी हुकूमत की जानिब से WCL के तमाम मुलाजमीन को 2 यौम की तातील दी गई थी और बाद हिफाजत तमाम मुकामी अवाम को घरों में महदूद रखा जा रहा था। आज IFO और इनकी टीम ने 2 दिन की कड़ी मेहनत व मशक्कत के बाद शेरनी को बेहोश करके कैद करने में कामयाब हुए। फॉरेस्ट टीम की जानिब से शेरनी को ताड़ोबा जंगलात में मुंतकिल किए जाने पर मुकामी अवाम व वर्कशॉप मुलाजमीन ने राहत की सांस ली। मेंडोरा मंडल के सावल में BRS पार्टी दफ्तर का मंडल सदर नागमपेट शेखर रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। मेंडोरा मंडल के सदर नागमपेट शेखर रेड्डी ने सावल देहात में BRS पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही व तरक्याती स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार के इस प्रोग्राम में ZPTC T गंगाधर, मौजे के सदर अनिल, MPTC पपुला राजू, साबिका सरपंच वेंकटेश, साबिका MPTC N तिरुपति, पार्टी के कायदीन N लिंगना, रविंदर गौड, साया रेड्डी, गोपाल, मौजे के कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। తప్పకుండా వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధికి మేమందరం కూడా కట్టుబడి ఉంటాం. రాబోయే రోజులలో ఖచ్చితంగా BRS పార్టీకి అత్యధిక మెజార్టీ ఈ మండలంలో ఉన్నటువంటి సావెల్ గ్రామం నుంచి ఇస్తామన్నటువంటి నమ్మకాన్ని వారు కలగజేస్తున్నారు. కాబట్టి మరొకసారి ఆ గ్రామ ప్రజలకు, ఆ BRS కార్యకర్తలకు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మా BRS పార్టీ తరఫున, వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి అన్న తరఫున, మరి ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి KCR గారి తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ बासठ सरपंच लक्ष्मण राव की जेर निगरानी में जदीद तौर पर नौ मुंतखब होने वाले विलेज डेवलपमेंट कमेटी मेंबरान ने मोदुल रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी की तहनीत अमल में लाई। बासठ सरपंच लक्ष्मण राव के जेर निगरानी में जदीद तौर पर 9 मुंतखब होने वाले दही कमेटी मेंबरान ने मोदुल रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बासठ में मुताल्लिक़ा मसाइल व तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के लिए MLA के इल्म में लाने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ TRS पार्टी के कायदीन, कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। एड़पल्ली मंडल के ब्रह्मनापल्ली देहात में मुफ्त आयुर्वेदिक कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। एड़पल्ली मंडल के ब्रह्मनापल्ली देहात में मुफ्त आयुर्वेदिक कैंप के ताल्लुक से मुकामी अवाम में शोर बेदारी अमल में लाने के लिए हर एक घर का सर्वे करते हुए घर में मुक़ीम अफराद को आयुर्वेदिक के बारे में डॉक्टर वेंकटेश, फार्मासिस्ट N पुरुषोत्तम, MPHEO मालूमात फराहम करते हुए कहा कि आयुर्वेदिक में तमाम किस्म के अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज फराहम करने का इजहार किया। అంతేనా నాన్న కరెక్ట్ 30 రూపాయలు ఉంటాయి పిల్లలు ఉంటారు बोधन मंडल के उटपल्ली को सड़क की सहूलत फ्राहम करने पर मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली बोधन शेख आमिर की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। बोधन मंडल के उटपल्ली देहात में बस स्टैंड से GP तक BT रोड के तामीर के लिए 88 लाख रुपए मंजूर किए जाने पर मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली बोधन शेख आमिर की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच कृष्णा, AMC डायरेक्टर विनोद नायक, बलराम साइल, लक्ष्मा भास्कर, गालैया रामारेड्डी, लिंगम शंकर, फजल खान, मुकामी अवाम के अलावा BRS कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। మన ఈరోజు గౌరవనీయులైన MLA షకీల్ అన్న గారు మన రోడ్డు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది.
కాబట్టి ఆయనకు ధన్యవాదాలు చెప్పుకొని 88 లక్షల రూపాయలు कामारेड्डी कलेक्ट्रेट के अहाते में वाक़ जदीद ईवीएम भवन का जिले कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने लिया जायजा। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने कलेक्ट्रेट के अहाते में वाक़ जदीद ईवीएम भवन का जायजा लेते हुए भवन में मौजूद मुख्तलिफ कमरे जमात का मुशाहिदा किया। इस मौके पर ईवीएम को महफूज रखने के लिए कुशादा कमरे जमात की तामीर अमल में लाने का RNB अहदेदारान ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन सुपरवाइजर साई भुजंग राव RNB अहदेदारान ने शिरकत की। कामारेड्डी प्रोग्रेसिव फार्मर कंपनी लिमिटेड व रिलायंस फाउंडेशन कामारेड्डी की जानिब से कुदरती ज़राअत के तरीक़ों पर इजलास का इनेकाद। कामारेड्डी प्रोग्रेसिव फार्मर कंपनी लिमिटेड व रिलायंस फाउंडेशन कामारेड्डी जिले के तौसे से कृषि विज्ञान के मुकाम पर रुद्रुड़ के तहत किसान सम्मेलनम व कुदरती ज़राअत के ताल्लुक से शौर बेदारी का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहसीत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले रुकन असम्बली इलारेड्डी सुरेंद्र ने खिताब करते हुए कहा कि किसान प्रोटेक्शन कंपनी की तरक्की के लिए इनके काम करने के तरीक़ेकार की सताइश के इस मौके पर डॉक्टर नवीन कुमार प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर KVK रुद्र ने खिताब करते हुए कहा कि किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को मुनासिब कीमत फराहम करने के लिए मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने नाबार्ड लोन स्कीम की रस्मी इजराई अमल में लाई। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने 2023-24 साल के लिए 590 करोड़ रुपए की मिसाल से मुरत्तिब करदा नेशनल एग्रीकल्चरल विकास बैंक नाबार्ड पोटेंशियल लिंकेड क्रेडिट प्लान की रस्मी इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि फसलों के खर्चात के लिए 3165 करोड़ ज़राअत से मुताल्लिक़ा मैदान के लिए 1005 करोड़ रुपए और माह गिरोह की तरक्की के लिए 174 करोड़ रुपए मुख्तस करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले ट्रेनिंग कलेक्टर शिवेंद्रा, नाबार्ड AGM नगेश, LDM चंदम रमेश व दीगर ने शिरकत की। वनी मंडल हुमनापुर देहात में मुनाकिदा तरक्याती कामों के इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचूराम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। वनी मंडल के हुन्नापुर देहात में मुनाकिदा तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाने वाले प्रोग्राम में बहसीत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचूराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इनके साथ बोधन RDO राजेश्वर, मुकामी अवामी नुमाइंदे, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचूराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना का क़याम अमल में लाकर सिर्फ 9 साल ही मुकम्मल हुए, लेकिन रियासत तेलंगाना में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात के बायस मुल्क के दीगर रियासतों के लिए मिसाली होने का इजहार किया। असम्बली स्पीकर ने कहा कि तेलंगाना रेजिडेंशियल स्कूल में ज़ेर तालीम हर एक तालिब इल्म पर हुकूमत तेलंगाना हर साल 1.25 लाख रुपए खर्च करेंगे। इसी तरह से तेलंगाना का क़याम अमल में आने से पहले रियासत में 230 रेजिडेंशियल स्कूल थे, लेकिन अब 1000 से ज़ायद में इजाफा होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए रैयतु बीमा स्कीम के तहत फौजशुदा किसान के अफराद खानदान को 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और इसके अलावा मिशन भगीरथ स्कीम के तहत हर एक घर को साफ और शिफाफ पीने के पानी फराहम करने का इजहार किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीमात को अवाम तक पहुँचाने के लिए ZP इजलास में RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजड़ी गोवर्धन, ZP चेयरमैन D विठल राव व कलेक्टर की ताकीद। मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की फलाह बहबूद के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले प्रोग्राम को अवाम तक पहुँचाने के लिए TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजड़ी गोवर्धन, जिले परिषद चेयरमैन D विठल राव, कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ख्वाहिश की बरोदे चाहशुमा ZP चेयरमैन D विठल राव की सदारत में ZP इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इसी तरह से इस मौके पर कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि ZP चेयरमैन D विठल राव RTC तंजीम चेयरमैन के तौर पर ओहदे का जायजा लिए हुए 3 साल मुकम्मल होने पर पहली मर्तबा ZP इजलास में शिरकत करने वाले RTC तंजीम के चेयरमैन बाजड़ी गोवर्धन की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर RTC बाजड़ी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि जिले परिषद से इन्हें गहरा लगाव होने की याद ताज़ा की और 2 मरतबा MPP, 4 मरतबा रुकन असम्बली की हैसियत से 30 साल से जिले परिषद इजलास में शिरकत करने का इजहार किया। మరి మీకు అందరూ తెలిసి మొన్ననే పెద్ద ఎత్తున దాఖలు చేశారు. సెంట్రల్ వాళ్ళు ఈ ఫండ్ మాకు వాపసు ఇవ్వాలని
అది ఎంతవరకు మనం ఏంటంటే సీఎం గారు హ్యుమానిటీ గ్రౌండ్లో ఒక రైతుగా రైతుకు ఏమేమి ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ రైతు కాలం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు డిఓ గారు చెప్పినట్టు మన ముఖ్యమంత్రి గారేమో రైతుల బాగోగులు ఆలోచించి అనుకునే ఉండాలి, ఎక్కడ బాధపడుతుంది, 5 మంది ఇస్తున్నాం, భరోసా ఇస్తుందంటే అన్ని ఇస్తూనే వర్షాలు పడితే పండిన పంట 1 రూపాయలు ఎక్కువ ఉద్దేశంతో కళ్ళాలు ఇచ్చినాం. ఆ కళ్ళాలకు కూడా 40% మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ పెట్టి ఇస్తున్నాం. వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఏమో మాకు అర్థం కాదు. చంద్రబాబు నాయుడు కావాలని ఇబ్బంది పెట్టడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నం తప్ప వేరేం లేదు. దీనికి వ్యతిరేకంగా మనం ఒక నిజం అట్లా గ్రామాల్లో అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ ఆధ్వర్యంలో హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్లో మీటింగ్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. దాంట్లో సర్పంచ్ అందరూ ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ నేతలకు ఎక్కడ జరుగుతుంటే అక్కడ ఎంపీ పెట్టుకుంటూ ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో ఇంతకుముందు చైర్మన్ గారు చెప్పినట్టుగా, అంటే గౌరవ ఆర్టీ చైర్మన్ గారు చెప్పినట్టుగా తప్పకుండా మనకు ప్యాడీకి మనలాంటి నిజామాబాద్ జిల్లాకు ఆల్టర్నేటివ్ క్రాప్ మనకు ఆయిల్ ఫామ్ అనేది ముఖ్యంగా మనం అంటే ప్రజాప్రతినిధులు రోల్ మోడల్లో ఉండే మనం చూసి చాలా మంది ఇన్స్పైర్ తర్వాత మనం ముందుగా ఈ క్రాప్ నేర్చుకుంటే మాత్రం తప్పక మనం చూసి ఇంకా మంది కార్యక్రమంలో అధికార యంత్రాంగానికి గత 3 సంవత్సరాలుగా పర్యవేక్షకులుగా నారాయణ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో నూతన కలెక్టరేట్ కూడా మొన్ననే జిల్లా మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గవర్నర్లు కేసీఆర్ గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభం చేసుకోవడం, అన్ని సౌకర్యాలు అదే పాస్పోర్ట్ ఎంపీ గెలిచాడు. ఎంపీ కూడా పాస్పోర్ట్ మెంబర్ అయ్యాడు. మరి ఆయన దానికి పాస్పోర్ట్ అయితే రాలేదు, ఆయన అయితే మెంబర్ అయ్యాడు. మీరు మాట్లాడేది కూడా నేను రైతుల తరఫున మాట్లాడతాను సార్. పాస్పోర్టే కాదు, నేను పాస్పోర్ట్ గురించి మాట్లాడతా. పాస్పోర్ట్ గురించి जिले के गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल डिग्री कॉलेज में ज़ेरे तालीम तालिबात की जानिब से तहरीर करदा नावल के हैदराबाद बुक फेयर में नुमाइश के लिए रखे जाने पर रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने तालिबात को दी मुबारकबाद। गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल डिग्री कॉलेज में ज़ेरे तालीम तलबा की जानिब से तहरीर करदा किताब हैदराबाद बुक फेयर में नुमाइश के लिए रखे जाने की इत्तला हासिल होने पर रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी की अपनी सरकारी रिहाइशगाह में 12 नावल तहरीर करने वाले तलबात को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश की गई। शहर निजामाबाद में मुजरिमीन की हिम्मत में इजाफा, फिल्मी अंदाज में दिन दहाड़े एक शख्स को किया अगवा, महकमे पुलिस तहकीकात में मसरूफ। जिले निजामाबाद के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में अगवा करने का वाकया पेश आया। तफसीलात कुछ इस तरह से, कुछ अफराद TS29C6688 नामी सफेद रंग कार में आने वाले 3 नामालूम अफराद ने पॉलिटेक्निक के मैदान में एक शख्स को जदोकोब करते हुए कार में बिठाकर राह फरार अख्तियार की। असल इस अगवा का इर्तिकाब करने वाले अफराद व अगवा कर लिए गए शख्स की दरियाफ्त करने के लिए पुलिस मुलाजमीन ने नस्ब किए गए तमाम CC कैमरों का मुआयना कर मोटरसाइकिल गाड़ियों की तनखी अमल में लाई जा रही है। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। खानगी कॉलेजेस के बिलमुकाबिल तेलंगाना अखिलाती स्कूल व कॉलेजेस में तालीम, CM KCR का अहम कारनामा। हैदराबाद बुक फेयर में अखिलाती स्कूल के तलबा की किताब की शिरकत पर रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। निजामाबाद में मुजरिमीन की हिम्मत में हुआ इजाफा, दिन के औकात में पॉलिटेक्निक ग्राउंड के पास से एक शख्स को किया गया अगवा, महकमे पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज। पूरे मुल्क में सबसे कम वक्त में ज्यादा तरक्की करने वाली रियासत तेलंगाना। वानी मंडल में तरक्याती कामों का दौरा करते हुए रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी का इजहार। मुत्तहदा जिले में 138 कांग्रेस पार्टी यौम तासीस का शानदार पैमाने पर इनेकाद, अहम कायदीन ने की शिरकत व कांग्रेस की कारकर्दगी पर डाली रोशनी।
फलाही स्कीमात को अवाम के दरमियान ले जाना हर फर्द की जिम्मेदारी। ZP इजलास से TSRTC चेयरमैन बाजूडी गोवर्धन, ZP चेयरमैन डी विठल राव, जिले कलेक्टर का खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।